Today we are going to start with the new chapter, that is coordination compounds. This is an inorganic based chapter related to the inorganic chemistry, right? Now, what are the points that we have to study in this chapter? So that we'll start with one by one. So first point is nothing but the introduction. So in introduction, so they have given the definition or the meaning of the coordination compound, right? And we have an example. So ये जो आपका coordination compound होता है, right? First we should understand what is the meaning of coordination. Coordination, that is actually belong to the coordination bond. So any compound where the atoms or the molecules, they are attached with the central metal atom by the coordination bond. And you all know what is the meaning of coordination bond. Coordination bond क्या होता है? The bond which is formed due to the sharing, due to the transfer of pair of electron. Means transfer of pair of electron means what? Here one of the atom or the molecule that actually having a negative charge, that is nothing but the electron pair or the lone pair of electron, that will share their electron, lone pair of electron, to the central metal atom to form the coordinate bond, and that has been shown by the arrow. For example, here in this particular example, देखो अगर आपने देखा है platinum NH3 twice Cl2, ये वाला जो example दिया है वो. So here platinum is the central metal atom, NH3 is the molecule, and Cl is an atom of an atom. So NH3, in the case of NH3, nitrogen carries the lone pair of electron, that you all know. So nitrogen के पास lone pair of electron रहेगा. In ammonia, so they will share their lone pair of electron to form the coordinate bond with the platinum, and that has been actually denoted by this arrow like that. So the particular atom which actually shares the lone pair of electron, वहां से bond start हो जाएगा, and bond, वो जो arrow है, that ends at the metal atom. तो ये होता है generally coordination compound. Now this coordination compound, it is belong to the organic chemistry और inorganic chemistry और physical chemistry. किससे belong करेगा ये coordination compound? As I told you, this coordination compound, it is a branch of inorganic chemistry, right? Okay. और coordination compound जो है, it is actually studied in the coordination chemistry. So coordination chemistry is the chemistry where we deals with the study of the coordination compound. That is a branch of chemistry, we can say, that deals with the study of the coordination compound, right? तो अभी इसमें होता क्या है, ये डिटेल में पढ़ने से अच्छा मैं आपको एक स्पेसिफिक एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्रिएट किया हुआ है. सो व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन compound? So a coordination compound consists of central metal atom or ion surrounded by atoms or molecule. This is given, right? What is the meaning of coordination compound? Coordination compound होता क्या है? A coordination compound that consists of a central metal atom or ion which is surrounded by atoms or the molecule. तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. अगर डेफिनेशन पूछा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो वी नीड टू राइट ओनली द डेफिनेशन एंड जस्ट गिव एन एग्जांपल. तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स मतलब द कंपाउंड को देख के आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन. तो हम क्या क्या होता है, देखो ये एक एग्जांपल दिया है, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. दिस इज अ आईयूपैक नेम फॉर द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट? आईयूपैक नेम हमें पढ़ना है आगे, बट उसके पहले हम लोग सब बेसिक पढ़ लेते हैं. जैसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद डेफिनेशंस हो जाएगी अलग अलग, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, राइट? विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स. देन टाइप्स ऑफ लिगैंड्स होते हैं,
कौन से टाइप्स ऑफ लिगैंड होते हैं. देन हाउ टू कैलकुलेट चार्ज, दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट ऑन द मेटल आयन. ये हमने कंटिन्यू करना है. ओके उसके बाद आपको डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो चेक करना है. देन विल गो विद द नोमेनक्लेचर. ठीक है, स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आवाज भी क्लियरली आ रही है ना. या ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना क्योंकि आईएमपी पार्ट है, ये आईएमपी चैप्टर भी है. when we start with the IUPAC nomenclature for this coordination compound, right, उस टाइम पे आपको और बहुत ज़्यादा इलेबरेट हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि आप कंपाउंड से डील करने वाले हो तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड एक्सेट्रा. तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है CONH3 6Cl3. सो CONH3 6Cl3 ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ना, पहला पार्ट उन्होंने क्या किया है ब्रैकेट में दिखा है, मतलब CONH3 6 इज रिटन इन अ ब्रैकेट बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स. ये आपका कॉम्प्लेक्स है. और Cl3 जो है देखो आउटसाइड दी ब्रैकेट लिखा हुआ है, राइट, एज इट इज बिलोंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये एक आपका कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही बन गया है. तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, NaCl सोडियम क्लोराइड है ना, उसके सो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो ये जो जनरली ये जो कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, विल राइट द नेम ऑफ द कैटायन. सोडियम क्लोराइड के केस में हम लोग पहले सोडियम लिखते हैं देन क्लोराइड लिखते हैं. सो दैट इज द नेमिंग फॉर्मेट. सो विल राइट द नेम ऑफ द कैटायन एंड देन एनायन. उसी तरह से होता क्या है कि कैटायन हम लोग पहले लिखते हैं, जैसे NaCl में वी आर राइटिंग Na देन Cl, NaCl लिखते हैं, राइट. तो कैटायन पहले लिखते हैं फिर बाद में आप एनायन लिखते हो, राइट. तो अभी ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, राइट, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ये दिस इज अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है वो हम लोग देखते हैं. जैसे पहले CO जो यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, तो दैट CO इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल मेटल एटम. मैं सबका डेफिनेशन भी बता दूंगा सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है, राइट. हम लोग सब डेफिनेशन पढ़ लेंगे, बट अभी एक एक आप पहले देख लीजिए. पहला जो है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, राइट. तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम बन गया उस CO. उसके बाद CO को अटैच जो कंपाउंड मॉलिक्यूल है NH3, वो कितने 6 है. तो NH3 क्या बनेगा, NH3 इज नथिंग बट द लिगैंड, राइट. NH3 है आपका लिगैंड. उसी तरह से NH3 के बाद कितने NH3 है यहाँ पे, तो ये देखिए 6 लिखा हुआ है. दैट इंडिकेट द कोऑर्डिनेशन नंबर. सो 6 NH3 मॉलिक्यूल्स आर देयर. दैट 6 NH3 मॉलिक्यूल्स को जो 6 नंबर जो है, NH3 को तो लिगैंड कहा जाता है एंड 6 जो है उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. देन Cl3 अगर आप चेक करोगे तो विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट निकाला है ना स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाहर है, तो वो Cl3 बनेगा यहाँ पे काउंटर आयन, राइट. और होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो ये वॉट एवर कॉम्प्लेक्स दैट वी राइट इन अ ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट दिया है ना यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, दैट स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, अभी वन बाय वन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, लिगैंड एंड एक्सेट्रा. तो हम लोग पहले चलते हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास, राइट. व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम? हियर द मेटल एटम or maybe iron, the metal atom or an iron to which ligands are attached is called as the central metal atom. मतलब ये जो CO है वो सेंट्रल मेटल एटम है. ये सेंट्रल मेटल एटम को क्या अटैच है, लिगैंड्स अटैच है. तो आपको लिखते हो कैसे लिखना है, सपोज डेफिनेशन इज आज या व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, द मेटल एटम टू विच लिगैंड्स आर अटैच इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल मेटल एटम. तो यहाँ पे देखिए NH3 जो लिगैंड है दैट इज अटैच टू कोबाल्ट, तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है. तो दैट NH3 अटैच टू दैट कोबाल्ट इज कॉल्ड एज अ central metal atom. So central metal atom is the atom where ligands are attached. ठीक है. दूसरा क्या होता है,
दूसरा मेजर टर्म होता है यहाँ पे लिगैंड। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक अलग ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये है लिगैंड, सेकेंड टर्म, राइट। नाउ ligand generally forms the coordination bond to the central metal atom. I repeat the term. Ligands क्या होते हैं? They generally forms the coordination bond to the central metal atom. How they form the coordination bond? Because ligands having the lone pair of electron. अगर मॉलिक्यूल है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, या फिर ligands having the नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, मतलब Cl माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स रह गए, राइट। So that ligand they generally form the coordinate bond with central metal atom just by sharing their electron pair, right? तो ligand होता क्या है? अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ligand, so the molecule or the ion which are coordinated to central metal atom in a coordination compound are called as the ligands. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, the molecule or ions which are coordinated to central metal atom in a coordination compound are called ligands और donor group, ठीक है। ligands को donor group कहा जाता है। क्यों donor group कहा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास lone pair of electron है, राइट। तो यहाँ पे अमोनिया, या इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जहाँ पे NH3 लिया है अमोनिया, so in ammonia nitrogen carries the lone pair of electron. If you draw the Lewis structure for NH3, so you will find out that the nitrogen having the lone pair of electron. तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पर्टिकुलर स्पेसिस क्या करेगा? इट विल डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर दैट पर्टिकुलर लिगैंड्स they are also called donor group, ठीक है। दिस वर्ड लिगैंड इट इज एक्चुअली जनरेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है लिगेन, LIGAN, लिगेन। द मीनिंग ऑफ लिगेन इज टू बाइंड, राइट। तो ये ग्रीक वर्ड से जनरेट किया हुआ है, अंडरस्टूड, राइट। इसी में जनरली होता क्या है, अगर आप कंसीडर करोगे NH3 जो है विच इज अ लिगैंड विच इज अ डोनर ग्रुप, सो लिगैंड डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, यस और नो। दिस अमोनिया NH3 विच इज अ लिगैंड, राइट, विच डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। So hence according to the Lewis concept of acid and bases, right, so this particular ligand is act as a Lewis basis. Lewis basis मतलब क्या होता है? Which can donate the lone pair of electron, or what is Lewis basis? That is electron pair donor, ठीक है। While अगर आप CO के बारे में जानना चाहते हो, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? They will accept the electron pair ना। So according to the Lewis concept, it is act as a acid. तो सेंट्रल मेटल एटम क्या एक्ट करेगा? लिविस एसिड एक्ट होगा, बिकॉज इट एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लिगैंड क्या एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज अ बेस, लिविस बेस, बिकॉज इट डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। इसमें कुछ डाउट है क्या? सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड में वेरी सिंपल है, राइट। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, काउंटर आयन क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। सो काउंटर आयन यहाँ पे जो बन गया वो Cl3, बराबर। तो ये जो काउंटर आयन होता है दैट इज प्रेजेंट एट दी, मींस इवन वी कैन से एट दी, उसके जगह पे आप बोल सकते हो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहता है। सो द स्पेसिस which are present outside the coordination sphere or coordination bracket, we will use the word coordination sphere here, so that species are called as a counter ion. coordination sphere जो होता है, अगर आप चेक करोगे तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दिस ब्रैकेट शोज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ना, ये ब्रैकेट को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। So what actually coordination sphere contain? क्या क्या है देखो उसके अंदर। So coordination sphere में क्या क्या है? There is an
सेंट्रल मेटल एटम एंड देयर इज एन लिगेंड्स। यहाँ पे CO है और NH3, बट CO क्या बनेगा आपका सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, और NH3 क्या है आपका, दैट इज अ लिगेंड। So how will you explain coordination pair? The central metal atom or ion and coordinating groups ligands attached to it are written inside the sphere bracket and is together called as a coordination pair. आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, right? So here in the case of coordination pair, central metal atom and coordinating groups इसमें क्या बनेगा, NH3, we can say that ligand, central metal atom and ligands attach to the central metal atoms, they are written inside the sphere bracket and this sphere bracket is called as a coordination pair। ठीक है, अगर आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मतलब ये पर्टिकुलर केस के अंदर इफ यू चेक Cl3 इज आउटसाइड द ब्रैकेट तो Cl माइनस बनेगा, एनायन बनेगा, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन पेयर कैटायन बनेगा। दैट मीन स्टडी व्हाट इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। ऐसे भी एग्जांपल होते हैं कि जहां पे आपका जो एटम रहेगा या जो आपका काउंटर आयन रहेगा वो फ्रंट पे भी लिखा रहता है। मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा कैसे रहता है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग तो आपको पता चल जाएगा। So for example let it be suppose potassium is there, एग्जाम्पल अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, राइट। लेट टेक दिस इज अ कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K3, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, हाँ प्लीज, K3 Fe और फिर ये बन गया Cn ब्रैकेट 6, साइनाइड 6 है, ब्रैकेट तो क्लोज किया है। इफ यू चेक, अगर आप चेक करोगे ये वाला एक एग्जाम्पल वेर K3 रिटर्न फर्स्ट एंड देन कोऑर्डिनेशन स्पीयर which is coordination complex that is written after the K3 के बाद में लिखा हुआ है। दोनों ये और ये एग्जांपल अगर आप चेक करोगे, लेट इट बी ये फर्स्ट एग्जांपल देखो और ये आपका सेकंड एग्जांपल, इसमें चेक करोगे तो यहाँ पे काउंटर आयन देखो Cl3 बाहर है और यहाँ पे काउंटर आयन K3 जो है वो आगे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो जनरली K3 क्या बनेगा आपका कैटायनिक पार्ट बनेगा और FeCN6 क्या बनेगा, दैट इज एनायनिक पार्ट। सो दिस इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ये सेकेंड वाला जो है ना वो आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये जो आपका फर्स्ट वाला जो है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। दैट आई विल एक्सप्लेन, मैं आगे आपको बता दूंगा, राइट। सो टिल नाउ एनी डाउट, अभी इस पार्ट पे कुछ डाउट है क्या, कोऑर्डिनेशन